हाय। होप यू आर डूइंग वेल। फाइनली 1 वीक के बाद हमारा सेटिंग हो गया। Yeah, of course, Shrey. I'm just waiting for your this second call. Last time we were not just able to connect due to some technical errors, but it's now fine. करेक्ट करेक्ट। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, गिव द ऑडियंस एन इंट्रोडक्शन। Yeah, Shrey. So, myself, Brahma Prakash. I'm currently working as a head HR at one of the real estate company in Delhi NCR. It's a Pratik Group. And here I am since last this April this year only. I joined this organization 8 months back only. Prior to this, I was working with different organizations of real estate industry only. And before that, I was in army. Before that you were in army. Yeah. For how many years? So 15 years. 15 years in the army. Yeah. देन आर्मी से एचआर कैसे? एवरीबडी जस्ट इस तरह के सवाल सभी लोग करते हैं आर्मी से एचआर पे बिकॉज आर्मी में जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो काफी वहाँ पे मल्टी रोल हमारा स्किल होता है. When I enrolled in army as a staff duty clerk, so I was just used to take care of the accounts, recruitment, operation, logistic, everything. So we had a vast experience in the HR field, which is in the corporate sector as of now. So I think there is no much difference between the army, this HR working profile and the corporate working profile. ओके ओके ओके। सो ओके, आर्मी के बारे में थोड़ा बात करना है। अभी सडनली आपने Uh, टॉपिक चेंज कर दिया। क्योंकि ये जो है ना ये इट्स लाइक योर सोल. व्हेन पर्सन इज इन आर्मी वो द टिल लास्ट बीट यू हैव नॉट जस्ट फॉरगेट द आर्मीज कल्चर और द वर्किंग वर देयर. सो व्हाट डिड यू लर्न इन द आर्मी दैट इज हेल्पिंग यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो जो सिर्फ आपके पास है? मतलब क्या स्पेशल आपने वहां पे सीखा? A lot of things. Discipline is the foremost important thing. Your integrity, your connect with the organization. You are working for the organization, not for the individual. That is the most important in army. We are just there for the battalion, for the company, for the nation. So वहाँ पे होता है foremost your priority is your nation, then comes to your this team, then your family, and you are the last one. So this is the most important training we were just imparted in army. ओके, सो द ग्रुप फर्स्ट। Yeah, go first. आपके सराउंडिंग में जो कलीग्स रहेंगे वो ऐसे नहीं रहेंगे, हाउ डू यू डील विद देम? देखिए आपके जो आपका जो नेचर है आपने जो सीखा है आप वही पास ऑन करते हैं. इट्स नॉट दैट कि एवरीबॉडी जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट इट. इट्स डिपेंड ऑन दैम. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जैन जी, दे आर टोटली डिफरेंट. बट ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ये चीज नहीं है, वो डिसिप्लिन में नहीं आना चाहते हैं. दे आर नॉट जस्ट बॉदर अबाउट द वर्किंग कल्चर. इट्स डिपेंड. वी कांट इंसिस्ट ऑन दैट, बट वी कैन सेट एन एग्जांपल. इफ आई एम अगर ऑफिस के टाइमिंग 10 to 7 है, if in morning if I just came at 9:45 or 10 before this office starts, then people must watch it कि यार HR सर को टाइम से आते हैं, हम कैसे लेट हो सकते हैं. So होता है वो आपके एक्शन से they will just observe it, not for the words. डू यू थिंक दैट यू मेंशनड जेन जीज के लिए, डू यू थिंक दैट every young person should go through army trainings for at Yeah, least? I must just मैं इस चीज को पक्का रिकमेंड करूंगा बिकॉज नॉट इन आर्मी, इवन अगर एनसीसी कैंप्स में भी जाते हैं दे विल जस्ट नो हाउ टू लिव अ लाइफ. योर डिसिप्लिन, योर इंटीग्रिटी, योर बिहेवियर, एवरीथिंग जस्ट आप उसमें एक आपके अंदर इनकलकेट हो जाता है जो पूरी लाइफ आप कैरी करते हैं. Okay. So tell me now, अभी real estate में you are doing recruitment. So what is your main role? Is it uh, talent acquisition? Is it what is it that you're taking care of? So I'm not in specifically not in recruitment. I'm a journalistic HR here. Since I joined the real estate organization in 2011, I started one of the good organization ATS group of companies, which is good footfall in this NCR region. They had 25 projects. When I joined this company, they were having close to 4 projects, and after 8 or 9 years, when I quit, they had
25 projects ongoing or handled. So I am taking care of the all this portfolio of the HR, either recruitment, compliance, strategy, this employee engagement, everything. Everything. Abhi, Yeah, everything. Eh? yeah, yeah. Okay. So what would you say you are the best at? सबसे आपका you can say what you are known for. ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो कहूंगा मैं कि एक कल्चर डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट कल्चर। सो दैट इज मेरा एक कोर कोर पोर्टफोलियो समझ लीजिए आप, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रहा वहाँ पे पीपल कनेक्ट, बिकॉज इफ वी आर वर्किंग एनीवेयर इधर इन आर्मी और इन द कॉर्पोरेट, टिल द टाइम योर टीम डोंट हैव दिस बॉन्डिंग, जब तक वो आपको प्रोडक्टिविटी कह लो या आउटपुट कह लो वो नहीं मिलता है। सो टीम बॉन्डिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। Okay, so एक real estate organization में how does it work? So there's a can you explain how what does a team look like in a real estate developer organization? मतलब क्या क्या टाइप के लोग रहते हैं? रियल एस्टेट वैसे कहें तो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री एज यू नो आफ्टर दिस एग्रीकल्चर सेगमेंट, बट इट स्टिल नॉट दैट ऑर्गेनाइज वे, अभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं, बट अभी धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। तो रियल एस्टेट में जैसे हमारा अभी दो तरह का काम होता है, एक तो हमारा कॉर्पोरेट से वी आर वर्किंग, secondly होता है the execution team, those who are just built up the houses, who are built up the project. So the coordination between the corporate team, the planning team, the budgeting team, the account team and the execution team, either engineer, planning engineer, billing engineer, उनके अंदर internal coordination बहुत important है, और वो Hmm. तभी होता है जब वो टीम बॉन्डिंग क्रिएट होती है। Okay. जी। And how मतलब टीम बिल्डिंग कैसे करते हो आप? टीम बिल्डिंग में सबसे पहले के इंटरेक्शन, आपका टीम के साथ इंटरेक्शन लेवल आपका कंटिन्यूस होते रहना चाहिए। उनका जैसे फोर्टनाइटली हम मीटिंग करते हैं, है ना, जैसे हमने एजुकेशन टीम को बुला लिया, यहाँ से कॉर्पोरेट टीम्स में जो प्लानिंग है, हमारे आर्किटेक्चर है, उनके साथ हम हर 15 दिन में बैठ जाते हैं। उनकी जो ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए कि उनकी डिजाइनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो एटलीस्ट वो आर्किटेक्चर के सामने वो प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको वन टू वन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ जस्ट पास ऑन करना, सो दैट वी कैन जस्ट प्रैक्टिकली उनको पता है कि ग्राउंड पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको उसी लेवल पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जाती है, और वो उससे उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है अगर रेगुलर इंटरेक्शन हम करते रहते हैं। Okay. So okay. So how many people are you leading right now? As in कितने लोग हैं टीम में? यू आर टॉकिंग अबाउट द एचआर टीम और द होल ग्रुप टीम? होल The ग्रुप, the company that you are the company. your So goal is team currently, building, right? So currently we how are we are we are having close to 300 people on board, and okay. other than 300, we have a few contractors. They had a laborers and foremen. They had a specialized persons. They are working on the site. So close to 600. But directly, I'm not just heading them, but close to 300 people are on my road. Okay, so you might be needing lots of systems and processes also. Are you? Of course, What that is is the role of required. that in team building? So कि for इतने लोग that, रहेंगे तो a lot of things can go wrong. या ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन अगर उसके अंदर एसओपीज नहीं होती हैं, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं, तो कोई भी रन नहीं कर सकता है। सो फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी वी शुड हैव अ प्रॉपर एसओपीज, प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर दिस थिंग्स सारा नोटेड डाउन होना चाहिए कि कहाँ से, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का क्या हायरार्की होगा, उनका वर्क फ्लो क्या होगा। सीआरएम डिपार्टमेंट है, उसमें मान लीजिए एक बुकिंग आती है, किसी क्लाइंट ने पर्टिकुलर हमारी प्रॉपर्टी बुक की है, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी बुक करने के बाद उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा। सो दैट इज रिक्वायर्ड for each and every department. Other than the HR policies, there are two type policies. One is the HR policy, which is for the all persons working in particular organization. But if you are talking about the one particular department, they should have their separate policies, separate SOPs, standing operating procedure, to just run the business very smoothly. Okay. And इसका implementation मतलब
no one likes to follow ऐसे strict rules. So how do you make sure कि people are actually following the SOPs and all? Shreya, practically, if I'm talking, we have some kind of rule. We can't just suppose that 100% people will just follow it, but at least 60 to 70% अगर लोग उसको फॉलो करते हैं, दैट मीन्स हमारा काम हो गया. अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे जितने भी एक्ट्स हैं उनकी बात करें, पीपल आर नॉट 100% फॉलोइंग दैम. बट अगर एटलीस्ट 60 70% फॉलो करते हैं, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विल जस्ट गो अहेड. Correct, correct. वही मेन प्रॉब्लम मुझे भी आता है, लाइक दैट्स व्हाट आई हैव बीन फेसिंग कि द सर्टेन एसओपीज एंड people are not just following them. So वही like how do we make sure that people are following? वो रोज you have to tell them क्या कि अरे ये करो ये करो ये करो, like वो I'm trying to kind of understand from you. So for that we need to just now, जैसे last organization में I had one kind of this pilot project where I just put these things mandatory. Every day you have to just prepare this flow chart of our daily work. So we were just assessed whether you are just going through the SOPs or not. We were just observing कि आपने आज सुबह से शाम तक एक BBA बनाया, अलॉटमेंट बनाया है, आपने किसी को NDC इशू करी है, तो एज पर प्रोटोकॉल है कि नहीं है. सो ऐसा नहीं है, गलतियां होती हैं, बट अगर एटलीस्ट हमारा अचीवमेंट 80% तक जाता है एज पर एसओपीज, तो जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए बड़ा ईजी आउट होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू जस्ट वॉच द लास्ट एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ पर्सन कि उसने जो करेक्ट किया, बिकॉज देयर इज अ हायरार्की. सो एवरीबॉडी जस्ट हैज रिस्पांसिबल फॉर सच अ काइंड ऑफ वर्क व्हिच इज अलॉटेड टू दैम. सो वो एसओपीज पे काम तो करना पड़ता है, उसका रेगुलर रिव्यू होना बहुत जरूरी है, और वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए फीडबैक सिस्टम भी बहुत जरूरी है. Correct. Oh, questionnaires and all, do you use that? Questionnaires या या feedback form हो गया, like how do you बिल्कुल measure बिल्कुल it? वो हम करते हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज. सो हम करते जरूर हैं, बट प्रैक्टिकली इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड टाइम. मान लीजिए किसी का ऐसा कुछ चीज है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें हमें बाईपास करना पड़ता है. इट्स नॉट दैट कि हमें 100% एसओपीज को ही फॉलो करना पड़ेगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट एज वेल, इफ हमारे यहाँ एसओपी है कि आपको ग्रेजुएट लेना है, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, तो इट्स नॉट दैट फिक्स्ड कि वो उतने एक्सपीरियंस का कैंडिडेट हम हायर करेंगे. हो सकता है उससे ज्यादा का हो जाए, कम का हो जाए, वो एजुकेशन जो हमने उसका प्रेफरेंस रखा है वो फुलफिल हो ना हो. इट्स टोटली डिपेंड टाइम एंड सिचुएशन, क्योंकि एसओपीज इज ऑलवेज जस्ट अब जो. हाँ जी. Okay. So recruitment में you said कि आप नहीं देखते हो, like is it like how are you recruiting right now? Currently हम recruitment, I had a team. I have a team of 2 or 3 members. So Okay. whatever the requirements comes in, if the new requirements come up, then we will need to just assess whether the requirement fit or not, because we Okay. need to just understand the utilization of manpower is there or not. So two And people are able to do all of the recruitment जो भी talent acquisition है. yeah, Only- because we don't have that much of recruitment, we are just having 8 to 10 recruitments in a month. Eight Because to ten a attrition month. rate, because of the new project is coming up. Otherwise, attrition is not too high. We have a attrition of 2 to 3% only. 2 to 3%. अच्छा क्या? Something you're doing magic with the company culture. That is my specialization. In previous organizations, I also just उसको हमने काम किया था attrition का, because we just come up with a few ideas where this people will just जैसे आर्मी में एक हम कनेक्ट हो जाते हैं कि दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन. सो वो कल्चर जब डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद वो देखो हर आना जाना रहता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई परमानेंट है. इवन इफ आई वाज इन आर्मी, मैंने क्विट किया कॉर्पोरेट में से, बट एक है कि एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक कम से कम कोई 3 साल अगर कहीं पे सर्व कर रहा है, तो दैट इज अ गुड एनफ. सो वो एट्रिशन में काउंट नहीं होगा कि वो बैड एट्रिशन है. 3 साल बाद अगर उसको ग्रोथ नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ऑब्वियसली ही विल गो. So for that we need to just understand the
current scenario, current this mental this of the employees, existing employees concerns क्या है उनके, उनके छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका ग्रोथ मिल रही है नहीं मिल रही है उनको, उनका सैलरी टाइम से पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आर्मी के अंदर जो होती है, सॉरी मैं थोड़ा सा डीरियल हो जाता हूँ बिकॉज आर्मी के अंदर अगर हमारी एक टीम में जो भी मेंबर होता है, हमें उसका घर का पता होता है, उसकी फैमिली के बारे में पता होता है, इवन वी आर जस्ट अवेयर ऑफ देयर पैट आल्सो, कि उनके पास एक पालतू कुत्ता उसका ये नाम है। सो वो कनेक्ट इतना बहुत जरूरी होती है क्योंकि वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट अ मशीन। वो अगर कनेक्ट होगा तो पीपल विल जस्ट विद यू एवरी, मतलब हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज। यहाँ से छोड़ के भी जाएंगे फिर भी वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे सर, बिल्कुल। सो इन कॉर्पोरेट्स एज वेल, तो यहाँ पे अगर वो कल्चर हम डेवलप करते हैं, लोगों को एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल जस्ट कम टू अस, दे विल जस्ट टेल व्हाटएवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन करंट डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे वर्क, or even they have any problem with their family or उनके personal life में होते हैं, we need to just listen to them. सो डू यू हैव अ शेड्यूल कि ऐसा फिक्स डे पे एचआर के साथ ऐसे बात करना है कि Yeah, recently I had just अभी सॉरी मैंने अभी एक जैसे प्लान किया कॉफी विद कलीग्स। So for that activity we just call 10 to 15 people in a lot, then we'll just sit with them, उनके साथ उनकी जो लाइफ रही है, उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करना, एक दूसरे से और कनेक्ट एस्टेब्लिश करना। सो ये एक्टिविटी हम करते रहते हैं, सो ताकि उनके अंदर बॉन्ड क्रिएट रहे। देखो परेशानी तो डेली आती है, आप घर से बाहर निकलते हैं, घर में रहते हैं, हर दिन आपके लिए चैलेंज है, बट वर्क एनवायरनमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप हंसें, क्योंकि लोग जब हंसते नहीं है तो परेशानी आती है, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्ट्रैक्ट होती है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपने वो उसको कॉन्वर्सेशंस में से क्या ऑब्जर्व किया है? सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई पीपल आर डिस्टर्ब्ड एट वर्क? बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आप देखिए जो जो मेट्रो लाइफ है, यू स्टेइंग इन पुणे इफ आई एम करेक्ट, यस यस यस। कितना हैक्टिक है मेट्रो लाइफ। एवरीबॉडी हैज अ ईएमआई, बिना ईएमआई के घर नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है, हाउस होल्ड नहीं है। सो एक स्ट्रेस लेवल रहता ही रहता है फाइनेंशियली। आपके पेरेंट्स आपके होम टाउन में होंगे, उनको भी लुक आफ्टर करना है, ओल्ड एज पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ देम, सो उनका भी टेक करना। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आता है और कहता है कि मेरे फादर बीमार है, मदर बीमार है, मुझे 10 दिन के लिए घर जाना है उनके ट्रीटमेंट के लिए, कांट जस्ट जाना, उनको जाने दो। अगर उनके फादर या घर में जो भी परेशान है, अगर उनका इलाज हो जाएगा, वो सही से होंगे, तो उनकी प्रोडक्टिव बढ़ेगी। अगर आप कहेंगे नहीं जी आपका काम बहुत जरूरी है, पेरेंट्स बाद में है, तो ऐसे नहीं चलता है। मतलब आपने टैगलाइन शायद एक क्वेश्चन पूछने वाले होंगे शायद उस बारे में आप मेरे से तो उसी को कह रहा हूँ, ह्यूमन कनेक्ट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यार तो टेल मी मैन, अभी क्या सीन है मेंटल हेल्थ का क्या? सो अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। सो हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन इनटू एचआर? In corporates, I have been since 2011. It's close to 14 years. ओके सो 14 years ago वर्सेस नाउ मेंटल हेल्थ के पे फोकस जो है वो कैसे चेंज हुआ है? या मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स वर्स हुए कि बेटर हुए कि क्या सीन है? इसमें मैं 50-50 कहूँगा। It's depend on the individual. You are just live in a condition, very adverse conditions where you don't have just proper drinking water. I have been in J&K, I have been in this eastern sector of this part, where we just used to live in a bunker. वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 3 दिन आपको नहाने के लिए पानी नहीं मिलता था। आप बंकर में सो रहे हैं, बारिश में पानी आ रहा है, ठीक है। आप उस सिचुएशन से निकलते हैं तो आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ आप जितना ज्यादा उसमें डीपली देखिए, आप कुछ भी सोचें, सोचने से कोई उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट और यू हैव टू जस्ट क्रिएट इट। कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, यू हैव टू जस्ट वोकल आउट। आप किसी से डिस्कस करें, डिबेट करें, किसी को सुने, किसी को बताएं। और
चैलेंज ये है, फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड रह गए हैं। पीपल आर जस्ट कमिंग टू ऑफिस, 9 to 5 ऑफिस आए, घर गए, उसके बाद फिर ऑफिस आए, एक वीकेंड मिला, उसके बाद घर पे रेस्ट किया। फ्रेंड सर्कल आपका कम हो गया। आप किससे अपने मेंटल इश्यूज डिस्कस करेंगे? आप क्या फील कर रहे हैं? कितना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है? तो जरूरी है कि आपको आपके दोस्त बनाए। आप बाहर आपके दोस्त नहीं है तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने फ्रेंड्स बनाए। वो जो आपकी कहानियां हैं कि प्रोफेशनल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, आई एम नॉट बिलीविंग इट। प्रोफेशनल फ्रेंड, आपकी पूरी जिंदगी तो प्रोफेशन में है, इधर इन कॉर्पोरेट, इधर इन आर्मी, इधर इन आप एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हैं तो वो भी आपका प्रोफेशन है। बट आप किसी के साथ बात करेंगे तो वो आपके लिए हो सकता है हमेशा के लिए दोस्त ना रहे, बट फॉर टाइम बिंग रहेगा, आपकी एक यादें क्रिएट होंगी। तो मेंटल हेल्थ को आप जितना डीपली लेंगे, आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा परेशान होंगे। आप उस चीज को मतलब छोड़ दो। यू आर नॉट द प्लानर ऑफ योर लाइफ। आपने डिसाइड किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी एचआर में होऊंगा, हेड करूंगा। आर्मी में गया, एक प्लान था। बट आप काम करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। परेशानियां तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मेंटल हेल्थ को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, बिल्कुल। तो मैं लोग, बिल्कुल तवज्जो नहीं। पर जो सी, आपने करेक्ट बात बोली, इफ यू थिंक अबाउट इट वो वर्स होता है, राइट? तो भी लोग क्यों सोचते हैं? मतलब वाई आर दे, अगर रियल में सोचने से खराब होता है तो भी वाई आर दे थिंकिंग अबाउट इट? उनको उसमें क्या आ, कंफर्ट मिलता है या क्या मजा आता है? आप एक चीज समझिए। आप हाँ। आज से 20 साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, इतनी सिंपल लाइफ थी, इतने आनंद थे जिंदगी में। अब लोग सुबह से शाम तक इंस्टा, फेसबुक, इतना सोशल साइट्स पे, अगर उसके साथ ये हुआ, उसने ऐसा किया, यू आर नॉट अवेयर उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। आपको जो पर्दे पे दिख रहा है आप उसको सोच के चिंतित हैं, यार मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है। बट आप सोच रहे हैं, बट यू आर नॉट जस्ट परफॉर्मिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट। इवन आजकल के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो जो भी सवाल है एआई से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। अदरवाइज वी वर जस्ट यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी एट अ 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम आवर होम, कि यार ये पढ़ना है, कहाँ से बुक मिलेगी, लाइब्रेरी से कनेक्ट करनी है। सो फर्क ये है, आपको सारी चीजें हाथ में, आप बताइए ना, एवरी गजेट्स इन योर हैंड, सारी चीजें इजिली अवेलेबल हैं, उसके बाद भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो कैसे आप मेंटल कहते हैं कि आप परेशान हैं? आपको बैंक में नहीं जाना, आपको बैंक में नहीं जाना है। पहले 2 घंटे लाइन लगती थी, चेक लेके जाते थे, तब वो कैश में पेमेंट हुआ करता था। आप ऑन क्लिक मोबाइल पे पेमेंट आ रहा है, सब कुछ है। आपकी लाइफ इजी हो गई है, फिर भी आप स्ट्रेस में हैं। आप कहते हैं कि मेंटल हेल्थ खराब है। क्यों? क्यों आप लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, दोस्तों से बात नहीं करनी है, सोच रहे हैं उसका फोन आएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा, है ना? So, ये सब चीजें बनाई थी स्ट्रेस को निकालने के लिए। बढ़ गया, लेकिन बढ़ गया। इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, जैसे अभी हम कनेक्ट हैं, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। हम एक हम्म। दूसरे शेयर कर रहे हैं। अर्लियर वी वर नॉट, मैं जानते ही नहीं था शेर कौन है, आप नहीं जानते थे ब्रह्म कौन है। बट आज हम कनेक्ट हुए हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज है। वंडरफुल। सो मैंने आपसे एक ग्राफ सेंड किया था, आपने वो देखा रहेगा, उसमें अलग 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 आपके पास है? हाँ हाँ, I'm just open with this. अच्छा। हाँ, सो यू कैन सी, ये एचआर स्ट्रैटेजी में ये सारे चीजें आते हैं, लॉट्स ऑफ हाँ। डिफरेंट थिंग्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। इसको नेविगेट कैसे करने का? वेयर डू यू इवन स्टार्ट इफ यू आर एन एचआर और somebody in this field? How do you even navigate all this? कहाँ से अच्छा, चालू करें? आपने मेरे से एक सवाल पूछा था शुरू में कि हाँ। आर्मी के अंदर एचआर, आप आर्मी में थे फिर एचआर में कैसे आ गए? हम्म। सेम ही वही होता है। हम लोग जब बॉर्डर एरियाज में होते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई द मिलिटेंट और द एनिमी। सो उसके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। सो सेम थिंग है फॉर ईच इंडस्ट्री और द काइंड ऑफ वर्किंग। क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, रियल एस्टेट है, सर्विस सेक्टर है, एफएमसीजी है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, तो इट्स टोटली डिपेंड।
कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है। बट एचआर की अगर बात करें, कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती है। इट्स डिपेंड कि ऑर्गेनाइजेशन उसको किस तरह से उसको बनाती है। अब जैसे रिक्रूटमेंट को लेके, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी, बट रिक्रूटमेंट तो रिक्रूटमेंट है, उसकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट, देन वी असेस द बजट, वी हैव टू जस्ट plan out, then we just get approvals of the concerned head of the department whether the person is required or not. Then we just use this different kind of tools. उसके बाद फिर उनको पूरा रिव्यू करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, फिर उनको लाइन अप करना, फिर हायर करना। तो जापान, तो अगर इसमें बात करें जॉब आर्किटेक्चर, जॉब आर्किटेक्चर क्या है जापान, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। मान लीजिए कि मेरे को, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मेरे को इंजीनियर्स चाहिए। अब इंजीनियर्स की अलग अलग कैटेगरीज है, मैकेनिकल होगा, सिविल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, ऑटोमोबाइल होगा, कंप्यूटर इंजीनियर होगा। सो इट्स टोटली डिपेंड। तो उसका आर्किटेक्चर कैसे फ्रेम करें कि हमारा तो प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का है, फॉर दैट वी नीड अ सिविल इंजीनियर, फॉर दैट वी नीड अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज वेल। सो वो उसका वर्क प्रोफाइल असाइन करना है। बाकी जैसे जॉब प्लानिंग, अब जैसे हम, मैं व्हाट आई एम डूइंग हियर, जैसे ही एम्प्लॉय उन्होंने रिक्वायरमेंट दी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वी हायर द कंसर्न पर्सन, देन वी जस्ट विद इन अ वीक आई जस्ट टेल टीम टू जस्ट आस्क देम फॉर देयर क्वेरीज। कि हमने उसको ऑन बोर्ड तो कर लिया, आपने उसकी रिक्वायरमेंट दे दी। इनिशियल फेज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब रिक्वायरमेंट्स आती है, तो आप एक मैक्रो लेवल पे उसकी यूटिलाइजेशन बता देते हैं कि ये काम करना है। बट वंस द कैंडिडेट इज ज्वाइन ऑन बोर्डेड, उसका प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इट्स नॉट दैट कि फ्लैक्सी है, जैसे बीपीओ में है कि यू हैव टू जस्ट कॉल द कस्टमर्स एंड जस्ट अटेंड देम। बट हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। सो वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई, उसके बाद उनका क्यारे सेटअप करना है। क्यारे के अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड और असेस whether the person is just potential in this particular scenario or not. If not, then we can just succession planning जिसे कहते हैं, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर Okay, सकते हैं। okay, So such kind of activities or such kind of strategies we are just continue just doing it. okay, okay. So Yeah. what is kind of the goal? Suppose एक goal रहता है, right? For every department there's a goal. Suppose आपके industry में goal is to finish the project. बिल्कुल। But with your HR profession as an HR head, what kind of goals do you have? कि इतने लोग hire करने हैं या ये करना है वो, like what is the goal? Obviously ये this is a small step, we can set छोटे छोटे गोल सेट होते हैं। जैसे अब रिक्रूटमेंट है, इफ वी आर जस्ट कमिंग अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट विच इज रिक्वायर्ड 50 प्लस ऑफ एम्प्लॉइज in a different departments, either in execution, either in planning, accounts. So we need to just identify whether the project is supposed to start in the next 2 months. So we need to just plan out. Before starting the project, we need to ensure that the required manpower is onboarded. So वो छोटे छोटे गोल हम के 45 days का हम एक टाइम लाइन लेके चलते हैं स्टैंडर्ड। 15 days our this recruitment process, 30 days is the notice period. This is the standard protocol in the industry. So उसकी 45 days को आप स्ट्रेच करके 2 महीने कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उससे आपका गोल मैच नहीं करेगा। सो वो आपको उसके साथ चलना ही चलना है। अब Understood. जैसे अप्रेजल्स हैं, आपका बाकी चीजें हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, सैलरी है, हमें पता है कि सैलरी वी आर पेइंग ऑन सच डेट। सो वी नीड टू जस्ट प्लान आउट कि वो इस डेट को आपने स्टार्ट करना है, इस डेट को फिनिश करना है, इस डेट को अकाउंट्स में जाएगा, दैट्स फिनिश। ओके, ओके। सो आप बेसिकली बोल रहे हो जो प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक रहता है टू वॉट एवर बिजनेस, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू क्रिएट अ प्लान एंड अ स्ट्रेटेजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. Done. So, just one last topic I wanted to ask you about. On your LinkedIn, you obviously written human relations. हमने थोड़ी बात की कि लोगों के साथ पर्सनल टच करो ये वो, बट रिलेशंस के लिए बहुत टाइम लगता है एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए. एंड व्हेन यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज, हाउ कैन यू डू दैट? Very important question. I started corporates this in 2011.
सो वहाँ पे हमने क्या किया, बिकॉज वहाँ पे जो मैन पावर थी, इट वॉज क्लोज टू 4,000. सो वी हैड मल्टीपल साइट्स, क्लोज टू 20-25 प्रोजेक्ट साइट्स. सो आई वुड जस्ट यूज टू गो देयर एवरी मंथ. उनके साथ हम एक गेट टुगेदर रखते थे, उनके साथ चाय पीना, अप्रिसिएशन देना, उनके जो कंसर्न्स थे एचआर से रिलेटेड खासकर. सो वी वर जस्ट पुट द हेल्प देयर, so they need not to come to the corporate office for the little petty things. So उनको बड़ा अच्छा लगता था कि एचआर हमारे पास आया है और उनकी छोटी छोटी परेशानियां हैं, छोटी छोटी दिक्कतें हैं, तो वो एक ह्यूमन रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहां पे उनको वो फील कराना है कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. अगर मेरा पेंट्री बॉय है, अगर वो सुबह टाइम से नहीं आ रहा और वो चाय सर्व नहीं कर रहा, दैट मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. सो उसको फील देना कि आप भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं जितना टॉप लेवल का सीईओ है. सो वो ह्यूमन कनेक्ट बहुत जरूरी है. तो उससे क्या होता है कि वो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. रियल एस्टेट में बहुत ये मिसहैपनिंग होती रहती है, कभी लेबर हाइट से गिर गया, बैक केसेस होते रहते हैं. तो अ, एक पर्टिकुलर साइट थी, वहां पे एक स्कैफोल्डिंग होती है, जिससे पूरा प्लास्टर वगैरह ऊपर एरिया में करते हैं. सो वहां से स्कैफोल्डिंग गिर गई, और स्कैफोल्डिंग गिर गई तो पूरा मलबा इकट्ठा हो गया, उसमें कोई हेलमेट वगैरह दब गया होगा लीवर का. सो र्यूमर फैल गया कि हमारा साथी कोई दब गया और मर गया. आप समझिए लेबर सारी एकदम गुस्से में आ गई. उन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी. वहां पे जितने भी एग्जीक्यूशन टीम थी वो सारी भाग खड़ी हुई. मी एंड माई मेंटर, मेरे कॉर्पोरेट हेड थे, हम लोग साथ में गए. तो उन्होंने ये मुझे सिखाया वहां पे. जब वो वहां पहुंचे और हम वहां पहुंचे, तो वो सारे लोग, अरे सर आ गए, आप सर बताइए कैसे होगा. तब वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहां पे पुलिस को बुलाना पड़ा, फायर तक की सिचुएशन आ गई. बट लोगों का ट्रस्ट था कि सर आ गए हैं, ये हमेशा हर महीने हमारे साथ चाय पीते हैं, हमारी परेशानियां समझते हैं, ये हमें निदान देंगे. तो वो जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप इस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं. हम्म, इंटरेस्टिंग. ये बहुत मतलब रेयर एग्जांपल था बट परफेक्ट था इसके लिए. इंटरेस्टिंग. पर मतलब वो कंपनी, डिपेंड्स ऑन द कंपनी. मेनी पीपल दे डोंट फाइंड वैल्यू कि लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड करें, जिस काम करना, ऐसा टाइप का एटीट्यूड रखना. देखिए एचआर का जो डेफिनेशन है ना, दैट इज, मैं उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है मेरा. आई एम नॉट जस्ट ह्यूमन रिसोर्स, इट्स अ ह्यूमन रिलेशन. हम्म. दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि हम कोई रिसोर्स नहीं है, करेक्ट, करेक्ट. इंसान कोई रिसोर्स रिसोर्स वर्ड नहीं है. करेक्ट नहीं है, वो रिसोर्स करेक्ट नहीं है. वो रिसोर्स वर्ड मैं तो कहता हूँ उसको डिलीट कर देना चाहिए आपके कैरिकुलम से. रिलेशंस इट शुड बी. इट्स अ ह्यूमन रिलेशन. हम्म. आप उसको संसाधन की तरह, रिसोर्स की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल की चीज है क्या? आप बताइए. सो मेरे साथ मैनेजमेंट की थोड़ी ये दिक्कतें आती हैं, बिकॉज मैं अपना जो प्रीव्यू रखता हूँ, जो परसेप्शन रखता हूँ एचआर को लेके, वो इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ. सो समटाइम्स दे आर नॉट जस्ट हैप्पी विद मी. करे आप हमारे साथ खड़े हैं, नो, आई एम स्टैंड विद माय टीम, माय एम्प्लॉइज, आई एम हियर टू देम. Amazing. Done. So I think I've kind of covered what I wanted to ask you. Is there anything you'd like to wrap up with? श्रेय, आपने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं इतना ज्यादा. क्या? मैं आपके बारे में पूछना चाहूंगा. पूछो आप आप. सबका पॉडकास्ट करते हैं, सबसे पूछते हैं, तो आपकी लाइफ के बारे में पूछना चाहूंगा. आपकी स्टडी कहाँ से रही और आपने कैसे सोचा कि मुझे पॉडकास्ट करना है, और इतना इंटरेस्टिंग ये. आई एम जस्ट सो हैप्पी कि मतलब यू आर एट 19 years ऑफ यंग एज, इतनी सारी चीजें, इतना आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस ले रहे हैं. इट्स अमेजिंग. ओके, यू कैन. एक क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछे, मैं आंसर करता हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन हाँ. पक्का? एक एक ही क्वेश्चन मिलेगा. अच्छा. अच्छा, आप ये बताइए कि जितने भी लोगों से मिलते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, सो आपका मोटिव क्या रहता है? वाह. मेरा मोटिव, सो मेरा मोटिव जेन्यून रहता है. मतलब ऑब्वियसली मैं मेरे बारे में सोचता हूँ फर्स्टली कि पर्सनल बेनिफिट क्या है मुझे, बट ऐसा कनिंग वे, ग्रीडी वे में नहीं करता हूँ मैं. आई मेक श्योर दैट हुएवर आई इंटरेक्ट विथ, उनको मेरे से भी कुछ मिले.
and I do not Beautiful. expect anything in return, but I just hope that I get something in return. And Yeah, I great, hope great. भी नहीं मतलब देने का तो देगा. I will be a good person to everybody I interact with. So Yeah, that is how I deal with people. I try to help them कुछ पूछे बिना, and that's how I build relations, and that's how I built many very good network of mine, of very great, great. smart people, different backgrounds, अलग अलग लोगों से, अलग cities से. So I hope that answers your question. Great, great, great. Good. Done. So thank you so much. I hope Thank you so people much to enjoyed. you. अगर किसी को आपसे connect करना है तो where can they reach out to you? Uh, my LinkedIn profile, you can just share Okay, it. done. Or I have my this Instagram profile as well, but I rarely use it because I just use for the poetry only. Okay, then I'll link your LinkedIn and they can connect. Done. Thank Yeah. you. Thank you so much, man. Yeah. Thank you.